Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video, we are going to start with environmental management. This is in class 10th of SSC board. So we will be completing this chapter. आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसमें जितना पार्ट कवर होगा वो रहेगा ही, बाकी के पार्ट्स मैं रिमेनिंग वीडियोस में कंप्लीट करूँगी. So this way we will be completing this chapter. Now starting with the video, when we say environment, so environment ये surrounding or the condition where we live. जिस कंडीशन और जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं. एज वी कैन सी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एवरीवेयर वी कैन सी द पोल्यूशन. सो द एरिया इज बीइंग पोल्यूटेड और हर जगह कॉन्क्रीट जंगल्स बनते जा रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन होते जा रहा है. एंड देयर आर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विच आर एंडेंजर्ड, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी कगार पे हैं. तो ये सब वजह हमें अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना चाहिए. वी नीड टू कंजर्व दिस एनवायरनमेंट. बीइंग अवेयर ऑफ दिस एस्पेक्ट वी have to study this environmental management chapter and we will be covering different aspects in the upcoming video also. Now we have to go through the ecosystem. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Then environmental conservation कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे. Environment and ecosystem क्या होता है, how they are interdependent, what is the relationship between environment and ecosystem, we will be studying about this. Then we have to study about environmental management and at last we will be covering biodiversity hotspot. So these are the topics that we will be seeing in this chapter. In this video we will be starting with introduction. We will be covering important topics like what is ecosystem, what is environment and then what is food chain, फिर food web क्या होता है. ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में. ओके, चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही दिया है कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट. एंड जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो इसी हेडिंग से स्टार्ट होता है, दैट इज इकोसिस्टम. वी हैव बीन बाय हार्टिंग दिस डेफिनेशन सिंस आवर चाइल्डहुड, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या होता है बेसिकली. व्हाट इज दिस इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. व्हेन आई से बायोटिक इट मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, whereas when I say abiotic it means the non-living components. Now what kind of interaction is taking place between biotic and abiotic? तो जब मैं interaction की बात करती हूँ, जैसे with an example I will be explaining you all. पहला example मैं देती हूँ कि seed germination. Now this seed I consider it as biotic and it needs water and soil. These are abiotic components. इसके interaction से now these seed will germinate, so there is interaction between biotic and abiotic component. जो मैं second example दे रही हूँ वो ऐसा है कि कोई plant है. Now this plant will grow in the direction of sunlight. Here a plant is growing in the direction of sunlight. Now here the light is considered as abiotic whereas the plant is biotic. So there is interaction between abiotic and biotic component. Hope so this definition is clear to everyone. Now we will be studying about food chain and food web. Here in image there is a representation of food chain. तो जब हम food chain define करते हैं, food chain होता है like simply I can say it is who eats whom. कौन किसको खा रहा है या फिर कौन किससे खाया जा रहा है, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज़ अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म. मतलब एक सीक्वेंस और सीरीज में ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म से खाया जा रहा है. सो दिस इज कमिंग अंडर फूड चेन. नाउ हियर देयर आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेबल्स. ट्रॉफिक लेबल जब हम बात करते हैं तो ट्रॉफिक लेबल मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का पोजीशन उस फूड चेन में कहाँ है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेबल. सो देयर आर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में भी टाइप आते हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. देन डीकम्पोजर्स. इस फूड चेन में हम देख सकते हैं एक ग्रास है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर्स को. फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रास होपर. ग्रास को खा रहा है ग्रास होपर. ग्रास होपर को अभी फ्रॉग खाएगा. फ्रॉग को यहाँ पे सांप दैट इज स्नेक खाएगा एंड देन स्नेक को कंज्यूम करेगा ईगल. एंड देयर इज अ डीकम्पोजर. डीकम्पोजर का रोल क्या रहता है कि वो ब्रेक करता है जो भी डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करता है सिंपल मॉलिक्यूल में. सो इससे क्या होता है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट. इस तरह से हमारा फूड चेन चलता है. सो दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर. तो यहाँ पे जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है. ग्रास होपर कंज्यूमर है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर. एंड डीकम्पोजर्स है. डीकम्पोजर्स मेनली रहते हैं फंगाई एंड बैक्टीरिया जो कि डीकम्पोज करते हैं डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर को.
आफ्टर फूड चेन देयर कम्स फूड वेब. अगर हम फूड वेब की बात करते हैं तो फूड वेब इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वी कैन से. देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब. सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब. मूविंग फर्दर हियर देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन. तो ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिज्म का पोजीशन उस एनर्जी फ्लो में. तो ये हेल्प करता है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का फ्लो उस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. तो हमने देखा है कि ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 एंड ट्रॉफिक लेवल 3, जिसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड देन सो ऑन. Now here there is a flow chart that we need to complete. Ecosystem is composed of two components, that is abiotic and biotic components. We will be studying about abiotic component. ये further classify है physical factor, then there comes the chemical factors. और physical factors का example दिया हुआ है air, water, vapor, mineral, soil, sunlight. In the chemical factor we have to mention nutrients. फिर जो केमिकल फैक्टर है, जो न्यूट्रिएंट है, ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो यहाँ पे आ गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नाउ कंटिन्यूइंग विथ बायोटिक कंपोनेंट्स, ये फर्दर क्लासिफाइड है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स द प्लांट दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. नाउ ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आता है एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के अंदर हमें मेंशन करना है कि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स. एनिमल्स के अंडर हमें मेंशन करना है कि एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स. वेयर एज डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, विच हेल्प्स इन रिलीजिंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इनटू द एनवायरनमेंट. तो ये बेसिकली कौन करता है? फंगाई एंड बैक्टीरिया दैट वी कैन मेंशन हियर. फिर कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस इज द एंटायर फ्लो चार्ट दैट वी हैव टू मेंशन. सो दिस इज अबाउट द एंटायर फ्लो चार्ट. यहाँ पे आया बायोटिक, यहाँ पे आया बायोटिक कंपोनेंट, फिर फिजिकल फैक्टर के बाद आया यहाँ पे केमिकल फैक्टर, यहाँ पे आया न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक. फिर हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ऑटोट्रॉफिक के बाद हेट्रोट्रॉफिक, देन ऑटोट्रॉफिक के अंदर आ गया प्रोड्यूसर, फिर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आ गया एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स. फिर प्रोड्यूसर्स में आएगा प्लांट्स, एनिमल्स में आएगा हमारा कंज्यूमर्स, दे आर कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स. डीकम्पोजर्स में आएगा फंगाई और बैक्टीरिया वी कैन मेंशन. फिर कंज्यूमर्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू और फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So this was all about the flow chart. Now we will be completing this paragraph and then we will be ending this video here itself. Paddy field is cultivated on large scale various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshopper. तो यहाँ पे फूड चेन रिप्रेजेंट किया गया है. तो पैडी फील्ड मीन्स चावल की खेती है, चावल की खेती पे ग्रासहोपर्स अटैक करते हैं एंड फिर ग्रासहोपर्स को खाते हैं फ्रॉग. फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ द पैडी फील्ड्स टू फीड अपॉन द ग्रासहोपर एंड स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन टू फीड अपॉन द फेवरेट फूड फ्रॉग. तो फ्रॉग अभी फेवरेट फूड किसका है? स्नेक का. अब ये फूड चेन हो गया कि पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड पे ग्रासहोपर फीड कर रहा है, ग्रासहोपर पे फीड कर रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को फीड कर रहा है स्नेक. एंड यहाँ पे लास्ट में हमें दिया है एक पॉइंट कि इफ़ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ सडन, कि फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो चुकी है. तो ये दिए हुए स्टेटमेंट को हमें ध्यान में रखते हुए ये सब क्वेश्चन का आंसर बताना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर दे हैव आस्क्ड इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप. पैडी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा? जैसे कि फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है, तो ग्रासहोपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एंड ग्रासहोपर फीड कर रही है, पैडी फील्ड पे ही डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे जो भी पैडी फील्ड से यील्ड प्रोड्यूस होगा, जो भी इसका प्रोडक्टिविटी होगा वो कम हो जाएगा. सो हियर देयर विल बी डिक्लाइन इन द यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप. दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग विद द सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज. कौन सा कंज्यूमर? जैसे ग्रासहोपर ये प्राइमरी हो गया, ये
सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गए। तो इसमें से अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो गई है तो कौन से कंज्यूमर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, किसकी कम होगी। लेकिन ईजिली कंक्लूड कि यहाँ पे ग्रास होपर जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वेयर एज द टर्शरी कंज्यूमर जो है स्नेक, इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉग की पॉपुलेशन पहले से ही गिर गई है, अभी स्नेक को अवेलेबल फूड नहीं है फीड ऑन करने के लिए। ग्रास होपर की पॉपुलेशन बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे उनको अटैक करने के लिए जो फ्रॉग थे उनकी स्पीशीज कम हो चुकी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, बट इकोसिस्टम में सभी स्पीशीज की पॉपुलेशन बैलेंस में रहनी चाहिए। जब कम ज़्यादा होगी तो इससे हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम कंसिडर किया जाएगा। सो आई विल बी कंक्लूडिंग दिस नाउ। आगे के जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट इकोसिस्टम, वी हैव टॉक्ड अबाउट एनवायरनमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड चेन, फूड वेब, and we have gone through this question answer that was based on the food chain. Hope so this video is helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.